وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر آئے ہیں۔ سورہ الکہف کا مطالعہ چل رہا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 17۔ ہم ان آیات کا پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وا اور ترا تو دیکھے گا، الشمسا شمسا سورج کو، اذا جب طلعت وہ نکلے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، سورج جو ہے عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، طلعت نکلتا ہے، اذا جب طلعت وہ نکلا۔ تو کیسے نکلا، تزاورو ان کہفہم، تزاورو وہ کتراتا ہے، وہ بچتا ہے، ان کہفہم ان کے غار سے۔ کس کے غار سے، وہ جو اصحاب کہف جو ایک غار میں پناہ گزی ہیں، تو سورج ایسے رخ پر ہے کہ سورج وہاں سے اس میں نہیں جاتا۔ ذات الیمینی، ذاتا والا، زو مانے والا ہوتا ہے، اور ذاتا جو ہے وہ اس کا مؤنث ہے، تو یہ ذات الیمینی دائیں طرف۔ وَإِذَا اور جب غربت وہ غروب ہوا، تقریدہم وہ کتراتا ہے ان سے، ذات شمالی ذاتا والا، الشمال بائیں طرف۔ تو جب غروب ہوتا ہے تو پھر بائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ وہم اور وہ، ہم کی ضمیر کس پہ جاری ہے، اصحاب کہف پر۔ ہم وہ فی فجوۃ منہ، فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، کھلی جگہ کو۔ تو وہم فی فجوۃ منہ اس کے، ہو کی ضمیر کس پہ جاری ہے، غار پہ جاری ہے، تو وہ غار میں کشادہ جگہ پر تھے۔ ذالکہ یہ وہ، مانے تو اس کے وہ کے ہوتے ہیں مگر یہ کے لیے جاتے ہیں۔
ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाह, मिन से आयातिल्लाह अल्लाह की आयतें, अल्लाह की निशानी। देखें ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये भी आपने पढ़ा है। तो ज़ालिका जो है ये इसमें इशारा है, दूर का इशारा है, और जब ये इस्तेमाल होता है तो दूर का इशारा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई किसी बड़ी सी चीज हो, किसी की अजमत जाहिर करनी हो तो ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। तो ज़ालिका ये है, ये बड़ी है, मिन आयातिल्लाह, निशानी अल्लाह की, यानी आयत तो एक निशानी और आयात उसकी जमा हो गई। तो ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। क्या चीज निशानियों में से है? ये जो है असहाब कहफ का गार में रहना और सूरज का कतराना। मन जो कोई जिसको यहदिल्लाहु, हिदायत दे अल्लाह, जिसको अल्लाह हिदायत देता है, फहुवा, पस वो, अल मुहतद, वही हिदायत याफ्ता होता है। वमन, और जिसको युदलिल, गुमराह कर दे, फलन, पस हरगिज नहीं, तजीदा, लन जो है ये क्या है, नासिब मजारे है, नसब देता है अपने आने वाले फेल को। तो लन और इसके मीनिंग होते हैं हरगिज नहीं। देखिए लम भी होता है, लम के मतलब नहीं होता है और लन के मतलब हरगिज नहीं। तो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज उसके लिए नहीं है, क्या नहीं है, तजीदा लहू वलियम मुर्शिदा, वो हरगिज नहीं पाएगा, हरगिज नहीं पाएगा उसके लिए, कौन नहीं मिलेगा उसको, कोई रफीक, वली, वली कहते हैं दिली दोस्त को, वलिया, कोई इसको वली नहीं मिलेगा। और मुर्शिदा, मुर्शिद जो है, देखिए रुश्द कहते हैं हिदायत को, तो फिर इससे जो है इस्मुल फाइल बना मुर्शिद। तो मुर्शिदा जो है वो क्या मतलब है इसका, हिदायत देने वाला, सीधी राह दिखाने वाला। तो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको ना कोई वली मिलने वाला है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। वतहसबुहुम, और तुम गुमान करते हो उनको, तू उन्हें गुमान करता है, तू समझता है उनको, ऐकाज़न, ये जो है देखें ऐकाज़ जो है ना, इसका मतलब होता है जागना, जागना। तू समझता है उनको जाग रहे थे वो, वहुम, और वो रुकूद, सोए हुए थे, वहुम, और वो रुकूद, सोए हुए थे। वनुक़ल्लिबुहुम, वा, और नुक़ल्लिबु, हम जो है क्या करते हैं उनको, बदलवाते हैं उन्हों। कल्ब के मतलब होता है बदलना। तो एक तो कल्ब के माने दिल भी होता है ना, लेकिन कल्ब और कालिब और कल्लिब जो है वो बदलने के भी मीनिंग में आता है। और नुक़ल्लिबुहुम, और हम बदलवाते थे उनको, ज़ातल यमीन, दाईं तरफ। अभी हमने पढ़ा है ज़ातल यमीन, वही है ज़ाता वाला यमीन, दाईं तरफ, दाईं तरफ। तो क्या चीज बदलवाते थे, ऑफ कोर्स करवटें बदलवाते थे। ज़ातल यमीनी, दाईं तरफ, व ज़ाता शिमाली, और बाईं तरफ, ज़ाता वाला, शिमाल, बाएं। तो दाएं बाएं वो करवटें बदलते थे। वकल्बुहुम, और कुत्ता उनका, बासितुन, फैलाए हुए, ज़िराइही, ज़िराइही, दोनों हाथ। ज़िरा जो है वो बाजू, पूरे बाजू को कहते हैं, यानी उंगली से लेकर कंधे तक, तो इसको ज़िरा कहते हैं। तो ज़िराइही, दोनों हाथ। आपको पता ही कि कुत्ता जब बैठता है तो अब हाथ अपने फैला के ही बैठता है वो। तो वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत, कहाँ बैठा हुआ था वो, वसीत कहते हैं चौखट पर। तो दहलीज पर, चौखट पर जो है वो बैठा हुआ था।
बिल वसीद वसीद पर, लवित तलाता, लव अगर, इत्तलाता तू झांक लेता, अलैहिम उन पर, लवल्लैता, तो फिर देखें लाम यहाँ ये ताकीद के लिए आ रहा है, वल्लैता तू पलट जाता, पीठ फेर लेता, लाजमन पीठ फेर लेता, मिनहुम उनसे, किस तरह, फिरारा भागता हुआ, जिसे हम उर्दू में फरार कहते हैं ना, ये वही लफ्ज है, फिरारा भागता हुआ। अगर कोई उनको झांक भी लेता तो जल्दी से वहां से हट जाता। वला मुलिता, यहाँ ये भी लाम ताकीद के लिए है, मुलिता भर जाता, मल्ली कहते हैं ना भरने को, तो मुलिता तू भर जाता, और लाम आ गया वला मुलिता, और लाजमन तू भर जाता, मिनहुम उनके, रोबा रोब में, रोब कहते हैं ना कि दिल में दहशत का आ जाना, उसको कहते हैं रोब। तो अगर कोई झांकता और उनको देखने की भी कोशिश करता तो डर के मारे भाग जाता। व कज़ालिका, व और कज़ालिका इसी तरह, काफ के मतलब होता है जैसे, और जालिका वो इसमें इशारा है, तो कज़ालिका और इसी तरह, बअसनाहुम, बअसना हमने उठाया, हम उनको यानी जिंदा किया उनको। फिर क्या हुआ, ली यतसाअलू, ली ताके, ये लाम तालील है, यतसाअलू ये वही लफ्ज है जो हम पढ़ते हैं अम्मा यतसाअलून, है ना, तो ये वही लफ्ज है कि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें, ली यतसाअलू ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें, बैनहुम आप दरमियान आपस में, क़ाला कहा, क़ाइलुन कहने वाले ने, एक कहने वाले ने कहा, मिनहुम उनमें से, क्या कहा, कम लबिस्तुम, कम लबिस्तुम कितनी देर ठहरे, लबिस्तुम कितनी देर ठहरे, कालू उन्होंने कहा, लबिसना हम ठहरे, यौमन एक दिन, औ बादा यौमिन या दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कोई पहर, कालू उन्होंने कहा, रब्बुकुम रब तुम्हारा, आलमू ज्यादा जानता है। देखिए एक होता है अलीम, है ना, और एक होता है आलम, तो ये अफालू के वजन पर है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है कि बहुत ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला। रब्बुकुम तुम्हारा रब, आलमू ज्यादा जानता है, बिमा जितना के, लबिस्तुम ठहरे तुम, यानी कितना ठहरे, कितनी मुद्दत ठहरे, तो जितनी भी मुद्दत ठहरे वो ज्यादा जानता है। फब असू पस भेजो, अहदकुम तुम में से किसी एक को, बिवरीकिकुम, बरख जो है यहाँ सिक्के को कहेंगे, तो बिवरीकिकुम अपने सिक्के के साथ, जाहिर है कुछ पैसे थे उनके पास, हाज़िही ये कह रहे हैं ये कुछ सिक्के लो और जाओ, कहाँ जाओ, इलल मदीनती शहर की तरफ, मदीना के मायने शहर के होते हैं, और आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जहाँ आप गए हिजरत करके वो भी मदीना कहलाता है, और वो कहलाता है मदीनतुन नबी। तो मदीना वैसे शहर के मीनिंग होते हैं, इलल मदीनती शहर में, फल यंजुर पस चाहिए के देखे, देखें गायब का सीगा है, पस चाहिए के देखे, अय्युहा अय्युहा कौन सा, अस्का ज्यादा पाकीज़ा, ये भी देखें अफलू के वजन पे अस्का, कि कौन सा है ज्यादा पाकीज़ा, तामन खाना, ताम खाने को कहते हैं, मतम
खाने की जगह यानी रेस्टोरेंट को कहते हैं। तो देखे कौन क्या किसी को खाने के पैसे देके भेजा कि जरा देख के लाना, पाक खाना लाना, हलाल खाना लाना। फलयातिकुम, बस लाए वो, कैसा लेकर आए, बिरिस्किम मिन्हु, खाना उससे, वल यतलत्तफ। अब देखिए ये जो है लफ्ज़ यतलत्तफ जो है, कहते हैं कि ये हिसाब से अगर अल्फाज के हिसाब किए जाए ना तो यहाँ पे आके ना हाफ ऑफ द कुरान हो जाता है पूरा। अल्फाज के लिहाज से इस लफ्ज पर आके आधा कुरान हो जाता है, इसलिए इस लफ्ज को हमेशा आपने देखा होगा हर कुरान में बड़ा लिखा जाता है। वल यतलत्तफ, और लत्तफ के मतलब क्या है, लतीफ से ये लफ्ज बना, हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो लाम तोफाज का रूट वर्ड है वल यतलत्तफ, और चाहिए के नरमी करे, चाहिए के नरमी करे, और क्या करे, वला युशइरन्ना, और ना खबर करे, ना जो है किसी को खबर दे, बिकुम तुम्हारी, अहादा किसी एक को भी, यानी कोई शख्स तुम्हारे हाल से खबरदार ना हो जाए। तो हम यहीं तक रखेंगे आयत नंबर 19 तक। तो आइए अब हम जो है इसका वर्ड टू वर्ड तो हमारा हो गया है, अब हम इसको जो है वो समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं। इसमें देखें ये जो हम जिक्र कर रहे थे कि ये सूरह कहफ है और आपको बताया था, और सूरह कहफ की फजीलतें हमने आपको बताई थी। सूरह कहफ की एक फजीलत ये भी है कि एक हदीस में आया कि एक सहाबी जो थे वो सूरह कहफ पढ़ रहे थे और वहां पे उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था, और जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि घोड़ा उनका बिदकने लगा, शोर मचाने लगा। तो जब उन्होंने सर उठा के देखा तो पता चला कि बादल जैसी कोई चीज उनके सर पर है। तो वो रुक गए, तो फिर उन्होंने देखा कि वो बादल जैसी चीज जो थी वो ऊपर चली गई। तो सुबह को उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो उन्होंने कहा कि ये सकीनत थी कि जो उतरी थी, और जो कुरान पढ़ने वालों पर सकीनत उतरती है, यानी उसके अंदर फरिश्ते थे कि जो आए थे कुरान सुनने के लिए। तो सुभान अल्लाह, सहाबा कराम जो है वो कितनी महवियत से और कितनी दिल से और कितने उससे कुरान मजीद को पढ़ा करते थे। सकीनत आज भी नाजिल होती है, ये और बातें हमें नजर नहीं आती, लेकिन सकीनत नाजिल होती है दिल से कुरान पढ़ने वालों पर। अच्छा, और सूरह कहफ की जो खास बात है वो ये है कि दज्जाल से खबरदार किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये कहा है कि दज्जाल के फितने से पनाह देने वाली ये सूरा है, और इसकी 10 आयतें शुरू की याद कर लो, 10 आयतें आखिर की याद कर लो। तो थोड़ी सी बात हम दज्जाल पे करेंगे कि दज्जाल का इतना ज्यादा जिक्र किया है, हदीसों में बहुत ज्यादा जिक्र आया है, और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मदीने में तशरीफ फरमा थे, और आप ये बताते थे लोगों को कि दज्जाल जब पैदा होगा, तो दज्जाल का मतलब आप समझते हैं ना, दज्जाल का मतलब जो है दजल से है, दज्जाल यानी फ़आल के वजन पे है कि बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। दजल का मतलब होता है धोखा और फरेब, तो धोखा और फरेब देने वाला झूठा आदमी उसको दज्जाल कहते हैं। तो वो जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि वो जब पैदा होगा तो उसके माँ बाप जो होंगे ना, उनके यहाँ तवील अरसे तक कोई बच्चा नहीं होगा, और 30 साल गुजर जाएंगे।
30 साल बाद उनके यहाँ औलाद होगी और वो दज्जाल होगा, और वो शुरू से ही जो है वो क्या कहते हैं उसको, अल्लाह ताला बहुत सारी ताकतें देगा, बहुत सारे इल्म होगा उसके पास, और गैब का भी वो थोड़ी बहुत अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं तुक्के लगा देगा, तो लोगों को लगेगा कि वो बहुत सच्चा है। तो कहते हैं कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जिसको जो है वो इब्ने सय्याद कहा जाता है, कि इसी तरह मदीने में वो लोग रहते थे, और फिर वहाँ पर 30 साल बाद उनके यहाँ एक कपल के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और इब्ने सय्याद उसका नाम था। तो अभी वो छोटा ही था, और वो लड़कों में खेल रहा था, तो लोगों ने ये कयास किया कि यही दज्जाल है। तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और आपने उससे कहा कि क्या तू मुझको नबी मानता है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं आपको नबी मानता हूँ। मुसलमान फैमिली थी वो, तो कहा कि मैं आपको नबी मानता हूँ। और फिर उसने अजीब बात कही, उसने कहा कि क्या तू मुझको नबी मानता है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो फिर आपने कहा कि नहीं, तुम नबी नहीं हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इम्तिहान लिया और उसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि मैंने क्या सोचा है। तो उसने कहा दुख दुख। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, यानी तुम करीब करीब पहुंच गए हो, यानी आपने दुखान सोचा था, या सूरह दुखान की कोई आयत सोची थी कि जिस तक वो पहुंचने की उसने कोशिश की और पहुंच भी गया, आधा पूरा नहीं पहुंच सका। तो इसी तरह से कहते हैं कि वो बड़ा होता गया और उसमें जो है वो कुछ थी चीजें कि जिससे लोग शक में पड़े रहते थे और समझते थे कि यही दज्जाल होने वाला है। और फिर एक सहाबी के बारे में आता है कि गालिबन हजरत अली के बारे में है कि उन्होंने सोचा कि जब वो 14-15 साल का था तो उन्होंने सोचा कि वो देखते हैं कि इसको जरा जाते हैं। तो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मुझे अभी ठीक से अच्छा। तो बहरहाल जो भी वहां पे पहुंचे तो उसने वो उनको आवाजें आ रही थी, उसने चादर ओढ़ी हुई थी, बिस्तर पे लेटा था और उसको आवाजें आ रही थी। तो वो आवाजें बाहर भी सुनी जाती थी जैसे वो किसी से बातें कर रहा है। तो उसकी माँ ने उनको साहबी को देख के कहा कि देखो वो आए हैं। तो वो उठ के बैठ गया और फिर वो आवाजों का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया। तो ये कि वो उसका असरार जो था वो खुलते खुलते रह गया। इसी तरह फिर वो और बड़ा होकर उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हुए। तो अबू सईद खुदरी जो है वो कहते हैं कि एक दफा वो हज पे जा रहे थे, तो हज पे जाते हुए जो है वो हज पे जा रहे हैं, तो ये भी साथ में हज पे जा रहा है। तो और वो उससे चाहते थे कि जरा फासले पर रहें, लेकिन वो जो है वो उनके लिए बकरी में से दूध निकाल के लाया और उनको पेश किया उसने, इब्ने सय्याद ने। तो उन्होंने, उनका दिल चाह रहा था कि वो ना लें, तो उन्होंने ये बहाना किया कि भाई ये तो दूध तो गर्म है तो मैं नहीं पीऊंगा, इसलिए कि गर्म दूध ऑफ कोर्स जब ताज़ा ताज़ा आप निकालते हैं तो वो थोड़ा सा वार्म होता है। तो कहने लगे कि मैं नहीं पीऊंगा। तो वो समझ गया, उसने कहा अच्छा तो आप इसलिए नहीं पी रहे हैं कि आप मुझे दज्जाल समझते हैं, हालांकि मैं दज्जाल नहीं हूँ। दज्जाल तो जो है बताया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दज्जाल की तो कानी आंख होगी, एक आंख वाला होगा, मेरी तो दोनों आंखें हैं। दज्जाल के बारे में तो आया कि वो शादी नहीं करेगा, मेरी तो शादी हो गई है, मेरे तो बच्चे हैं। मगर आप उनका दिल जरा कुछ नरम हुआ कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है, वो कहना तो नहीं है ये। तो फिर मगर उसने एक बात कही, उसने कहा कि मगर मैं ये जानता हूं कि दज्जाल आज कहाँ है।
मैं ये जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ है। अब ये सुन के जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो गए और वो वहां से हट गए, और उसके बाद कहा जाता है कि वो गायब हो गया। और उसने ये भी कहा था कि मैं तो हज पे जा रहा हूँ और वो तो दज्जाल तो मक्के में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल ये थोड़ी सी मालूमात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी कि दज्जाल के फितने से बचने की हमने पिछली दफा भी बात की थी कि पनाह मांगनी चाहिए। सबसे बड़ा फितना होगा वक्त का, और इसके अलावा हम कुछ और बातें करेंगे कि दज्जाल के आने से पहले जो है वो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, और वो जब दज्जाल आएगा तो फिर उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके हाथ में सारे वसाइल आ जाएंगे, दुनिया चलाने की जितनी चीजें होती हैं वो सब कर सकेगा। और आजकल जो ये कहा जाता है कि स्टेज तैयार हो चुका है, दुनिया में वो तमाम चीजें जो हैं मालूमात इतनी आ गई हैं कि लग रहा है कि दज्जाल का जमाना बहुत करीब आ गया है। इसमें जो है स्पेशली जो कहा जाता है कि वो जो है इस तरह का होगा और उस तरह का होगा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ रही हैं। यानी कि दुनिया सिमटती जा रही है, दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। जब ये कहा जाता है कि दुनिया पर वो हुकूमत करेगा तो लग रहा है कि दुनिया इतने करीब होती जा रही है, दुनिया में राब्ते इतने बढ़ गए हैं। आप देखें ना, फोन में जो है हम एक जगह होते हैं तो दूसरी जगह बड़े आराम से दूसरे कंट्री से ऐसे बात हो जाती है जैसे कोई वो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ है। तो इसी तरह हम मिनटों में घंटों में पहुंच जाते हैं दूसरे कंट्री भी। हम सफर भी जो है वो इतने आसान हो गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है कि आप जो है कोई भी चीज कंप्यूटर पे डालें और वो आपको बना के दे देता है। कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई कुछ भी करना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मुहैया हैं आजकल। और फिर मेटावर्स का जमाना है कि आप जो हैं वो अपने जो ये शक्ल है किसी की बना के और बिल्कुल वही आवाज उसमें डाल के और उसको कंप्यूटर में आप चलता फिरता देखेंगे और उसकी आवाज में बातें सुनेंगे। तो इस तरह की चीजें जो वो करेगा कि लोगों को जिंदा कर देगा। तो आज इंसान भी जिंदा कर लेता है, इंसान भी वही शक्ल बना के और तस्वीर बना के और उसमें आवाज डाल देता है। तो कहा जा रहा है कि दज्जाल का जमाना करीब है। तो हम फोकस कर रहे हैं सूरह कहफ में असहाबुल कहफ के किस्से पर। और असहाबुल कहफ की बात हमने आपको बताई थी कि चंद नौजवान थे जो अपना ईमान बचा के निकले थे, और उस जमाने में जो है ये कहा जाता है कि वो शहर अफसूस था, और उस जमाने में जो है ईसाइयत का दीन जो था वो फैल रहा था, मगर ज्यादातर जो है वहाँ पे पैगन्स थे, रोमन्स थे, यहूदी थे, बुत परस्ती थी, और क्या कहते हैं क्या फालगिरी थी, नजूम था, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी। और इसमें जो है बड़े जबरदस्त उस शहर में जो है उनका चर्चा था, और स्पेशली जो थे ज्यूज जो थे वो उसमें पेश थे। तो ये देखें आप कि ये हिस्ट्री की बातें हैं, ये तमाम किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो उस जमाने में ये लोग जो थे उस वक्त जो दीन था वो ईसाई मजहब जो था वो उस जमाने का दीन था। तो ये लोग जो थे वो ईसाई हो गए थे, यानी सही दीन पर थे, वो अल्लाह के दीन पर थे, और वो अपना ईमान बचा के उन्होंने गार में पनाह ली। तो इसमें अल्लाह ताला ने उन्होंने बड़ी दुआएं की थी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने उनको महफूज कर दिया। और किस तरह महफूज किया कि सूरज जो है, सूरज की रोशनी उसमें जाती ही नहीं थी,
यानी वो ऐसे रुख पे था गार का मुंह कि सूरज की रोशनी वहां जाती नहीं थी। जब सूरज निकलता था जब भी नहीं जाती थी, जब सूरज गुरूब होता था तो जब भी नहीं जाता था। आमतौर पे होता है ना कि क्या कहते हैं, जो जिस रुख पे होते हैं घर बने हुए उसी रुख पे जो है वो धूप आती है उन घरों में। तो यहाँ पे जो है दोनों जगह पे धूप नहीं आती थी, दोनों तरफ से, दोनों जमानों में जो है धूप नहीं आती थी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको प्रिजर्व करने का ये चीज जो है अल्लाह ताला ने की थी कि वो प्रिजर्व हो गई उनकी बॉडीज। और क्या कहा कि वो खुली जगह में थे और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और ये कहा कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है, यानी अल्लाह की तरफ से वो हिदायत पर थे, मुखलिस लोग थे, पक्के ईमान वाले लोग थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिया मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो फिर उसको कहीं से कोई वली और मुर्शिद नहीं मिल सकता। तो अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह बड़ा जालिम है और लोगों को गुमराह करता है और लोगों को जहन्नुम में डालेगा और कोई मुर्शिद नहीं मिलता, नहीं। ये लोगों की अपनी उसके ऊपर है, नीयत पर है और अपनी खोज पर है, और कि वो जमाने से बेजार हों और वो देख रहे हों कि कितनी खराबियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी ज्यादा देयर मस्ट बी सुपर पावर कोई है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो जो कोई दिल में अपने रखता है और ढूंढना चाहता है तो अल्लाह उसको हिदायत के रास्ते आसान कर देता है उसके लिए। तो फिर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब वो वहां सो रहे थे, जब वो गार में पनाह गजी थे, तो क्या था कि तुम अगर उनको देखो, अगर तुम उनको देखो तो तुम्हें वो जागते हुए नजर आएंगे, शायद उनकी आंखें खुली होंगी और करवटें वो बदल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको सुला दिया था। सुलाना जो है आपको मालूम है ना कि मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है। तो अल्लाह ताला ने दरअसल उनको नींद में कर दिया था, उनको सुला दिया था और उनको करवटें नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और उनको करवटें बदलवाते थे। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, और उनका कुत्ता जो था वो कहाँ था? कुत्ता उनके दरवाजे पर बैठा था। कुत्ते के बारे में भी आता है कि वो किसी एक शख्स का कुत्ता था और वो कुत्ते वफादार जानवर होता है और वो पीछे पीछे उनके आ गया था। तो वो जो है कुत्ता जो है वो उसके साथ ही गार के दहाने पर वो कुत्ता बैठा हुआ था। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तू झांकता, अब देखे ना इसमें हमें क्या चीज नजर आई, क्या बात, हम अगर गौर करें तो पता चलता है कि वो लोग सारे एक घर के नहीं थे। अगर 7 लोग थे वो तो एक घर के नहीं थे, इसमें से कोई शहजादा था तो कोई बड़ा ही था तो कोई शेपर्ड था तो कोई कुछ था। तफसीलात जो है ना वो आती हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के और मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं पेशों के लोग थे वो, लेकिन उनकी जो मुश्तरक चीज थी वो ये थी कि वो सब ईमान वाले थे। तो उसने जो है उनको इकट्ठा कर दिया और कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम कोई भी ये देखता, अब देखें वो वहां पे सो रहे हैं और अब आप ये कहेंगे ना आखिर पकड़े क्यों नहीं गए और पहचाने क्यों नहीं गए। अब भाई थोड़ा बहुत तलाश किया होगा लोगों ने अपने बंदों में, मगर इतने सारे बंदों में कौन ढूंढता है कहाँ। मगर अगर किसी ने, ऑफ कोर्स लोग गारों में हमेशा रहते हैं, है ना, लोग जो हैं पहाड़ों में रहते हैं, आज भी पहाड़ों में आबादियां हैं, पहाड़ों के ऊपर भी घर बनाते हैं, पहाड़ों के अंदर भी घर बनाते हैं, लोग हमेशा से लोग रहते आए हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जो है रहना कोई अनोखी बात नहीं है। तो और गार का दहाना भी था, तो दहाना का मतलब होता है डोर टाइप जगह,
تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی بھی جھانک لے وہاں پہ تو کیا تھا، وہ بھاگ جاتا، ڈر جاتا، بھاگ جاتا، اس کا دل جو ہے وہ رعب اور دہشت سے بھر جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز ان کے لیے رکھ دی تھی کہ کوئی اس منظر کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، ایک دم سے وہ خوف زدہ ہو جاتا، کیونکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو ان کا پتہ نہیں اندھیرے میں یہ کون لوگ ہیں کہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اب یہ ایک لمبا عرصہ، اب یہ بہت لمبا عرصہ وہ اسی طرح ان کا غار میں گزرا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو زندگی دے دی، ہم نے ان کو اٹھا دیا، اور جب وہ اٹھ گئے تو آف کورس وہ ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کی گئی کہ اور کیا باتیں کی انہوں نے، تو انہوں نے جو بھی باتیں کری وہ تو نہیں بیان کی گئی، صرف ایک بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس کے اندر کہ جب وہ سب اپنی اٹھ کے باتیں کر چکے کہ بھائی اب شکر ہے ہم بچ گئے اور کوئی ہمیں دیکھنے نہیں آیا اور پکڑے نہیں گئے، اس طرح کی آف کورس باتیں ضرور ہوئی ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اب ان کو لگی بھوک، تب ان کو بھوک بھی لگی، اور پھر انہوں نے یہ بھی سوچا، جب انسان جاگتا ہے تو اسے بھوک بھی لگتی ہے، تو کیا کہا انہوں نے آپس میں کیا باتیں کریں، ان کے بھی دو ہو گئے گروہ، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا سوئے ہوئے نا، کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے، انہوں نے لگا کہ بس وہ صرف سوئے ہیں کچھ، تو کیا ہوا، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا یا تو ہم ایک دن سوئے ہیں، پورا دن شاید سوتے رہے، اور کسی نے کہا کہ ہم آئی تھنک ایک پہر سوئے ہوں گے، دن کا ایک حصہ سوئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا اب اس میں کیا بحث کرنا کہ کتنی دیر سوئے، چلو اللہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ پھر وہ جب بھوک لگی تو کہا کہ چلو بھائی کسی کو بھیجو، تم میں سے کوئی ایک جائے اور سکہ لے اور جا کے جو ہے وہ کھانا لے کر آئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کہ کھانا وہ حلال کھاتے ہیں اور کھانا وہ پاک کھانا کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو کھانا جب لے کر آؤ گے تو کیا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو حلال اور پاک کھانا لے کر آنا، اور وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا نرمی سے پیش آنا، یعنی ظاہر بات ہے سخت مزاجی سے تو کام بگڑتے ہیں نا، جھگڑا مت کرنا، نرمی سے بات کرنا، کیونکہ وہ تو چھپے ہوئے تھے نا، اپنی طرف سے تو وہ چھپے ہوئے تھے، اور ان کا خیال تھا ابھی تو آدھا دن ہی گزرا ہے یا ایک ہی دن گزرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمیں پہچان لے، تو بھئی اور کھانے میں احتیاط کرتے ہیں ایمان والے، ہر چیز نہیں کھا لیتے، تو انہوں نے کہا کہ پاک کھانا لے کر آنا اچھا والا، اور کیسا ہو، نرمی سے بات کرنا لوگوں سے، اور لا یشرن بکم احدا، تاکہ تمہاری خبر نہ چل جائے، ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ تو 3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، یہی کہ مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ہم مسلمان جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ کے کھائیں کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ملی ہوئی ہو، کوئی کھانا ایسا خراب نہ ہو، سڑا ہوا نہ ہو، اور کیا کہتے ہیں حلال کھانا ہو، اور یہ کہ جب بھی کھانا خریدیں کسی سے بھی تو اس سے نرمی سے بات کریں، اور یہ کہ اپنے حال احوال جو ہے وہ کسی سے نہیں کرنے چاہیے۔ اور تیسری چیز جو یہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی دیر سویا رہا، تو آگے ہم پڑھیں گے قصے میں کہ وہ تو 309 سال سوئے، 309 سال سوئے، تو اب یہ کہ وہ 309 سال سوئے یا 200 ایئرس سوئے یا 100 ایئرس تو نہیں، 200 تو ان کی ہسٹری کہتی ہے کہ کرسچنز کی، اور قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 300 سال، لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال اور لوگ کہتے ہیں کہ 309 سال، تو اس میں جو ہے دیکھیں کیا زبردست چیز ہے، کیا زبردست بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو
इतने लंबे अरसे सुलाया और फिर उसके बाद उनको उसी हालत पे उठा के खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। ना किसी की उम्र बढ़ी, ना किसी की दाढ़ी बढ़ी, ना किसी के जो है वो सर के बाल बढ़े, ना नाखून बढ़े, कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब इसका मतलब है कि टाइम उनके लिए रोक दिया गया। यानी टाइम जो है, वक्त जो है, वो अल्लाह के इख्तियार में है, जिसके लिए जब चाहे वो टाइम जो है वो रोक देते हैं और किसी पर कोई असर नहीं होता टाइम का। वो बूढ़े भी नहीं हुए, उनकी बॉडीज भी नहीं गली सड़ी, कुछ भी नहीं हुआ ना। हम तो दुनिया में होते हैं, हमारे तो सबका हाल है, सभी उन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर बिल्कुल ज़लील उम्र पे पहुंच जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो हैं वो कुदरत रखते हैं कि अब टाइम पर उनकी, क्यों, अल्लाह ताला ने खुद ये ज़माने बनाए हैं, तो अल्लाह ताला किसी के ज़माने का मोहताज नहीं है, बल्कि हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। वक्त भी अल्लाह के कंट्रोल में है कि वो लंबा अरसा उनको ऐसा लगा कि वो बहुत ही कम टाइम गुजरा है। तो सुभान अल्लाह, इस पे हमें गौर करना चाहिए और हमें अल्लाह ताला की कुदरतों पर यकीन होना चाहिए। और दज्जाल के किस्से से ये भी पता चलता है कि दज्जाल जब लोगों को जो है वो जिंदा करेगा और लोगों के साथ इस तरह की चीजें करेगा, तो अल्लाह ताला हमें पहले से बता रहे हैं कि देखो, अल्लाह ताला तो ये कुदरत रखता है कि उसने तो 300 साल पहले वाले जो है वो जिंदा कर दिए, और सेम उसी हालत पे जिस पे वो पहले सोए थे, सुला दिया अल्लाह ताला ने। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।